how Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister, had ensured that all the respect is given to that individual, and that was, of course, setting a fine example as a Chief Minister, but that also clearly had political connotations as well. It's a very important state for Madhya Pradesh. BJP big guns, Congress's big guns are contesting from the central India state, and therefore let me take you through to the key candidates. I request our colleagues to continue to be with us. On top, of course, Shivraj Singh Chauhan, over 18 years of having been a Chief Minister, there is anti-incumbency factor. Can he beat that? If he does, it will be setting a record of sorts in Madhya Pradesh. Also, let's take a look at Kamal Nath, former Chief Minister. Got the party to win elections in 2018, could not sustain it, but would want a repeat of that. 9 times Member of Parliament from Chhindwara, clearly knows Madhya Pradesh very well. There is Narottam Mishra, Minister. Remember, a very important factor for the state. He has been very vocal in a lot of issues. A lot of fiery, controversial remarks have come from Narottam Mishra, who's been a minister as well. And that is why can from Datia, where our colleagues are also reporting from, Narottam Mishra regain the power in the government again? Can he at least win on his seat? There is Narendra Tomar, again ministers, remember. These are very important, how union ministers have been brought in and have been given the responsibility for the assembly state to win, get that public mandate. Prahlad Patel, again from Narsinghpur for the Bharatiya Janata Party. These are important constituencies for the BJP to be able to get a hold of if they want to have a public mandate in 2023. Kailash Vijayvargiya, BJP's General Secretary, one of the senior leaders of the Bharatiya Janata Party, offered prayers, have put in a lot of strategies, and this will be a big test for him to show that under his leadership, under his supervision, under his support, that somewhere the BJP has managed to win in 2023. Now, Fagan Kulaste, Bharatiya Janata Party's from Nivas constituency, union minister, like I was mentioning. This time for Madhya Pradesh, it was very interesting how senior ministers in the union and in the union government, in the centre, have been tasked with the responsibility for the assembly elections of 230 constituencies. A message to go, fight polls, get public mandate, and that will make you perhaps a bigger politician. Govind Singh of the Congress party is the leader of the opposition. But will they want to now become a leader in the government as well? The Congress party has a strong chance. They have fought this election, and they, of course, have the historical, the 2018 victory of Madhya Pradesh as well. Vikram Mastal, finally, Congress party, who's been an actor turned neta, like we have seen in a lot of other states as well, how a lot of actors are taking to politics. This one eventually, but will it matter to the public? That, of course, is the big test. Jeetu Patwari of the Congress party, former minister, he has political experience, and that will remain important as well. और उनकी पत्नी साधना सिंह, और ये इनका नियम है, पूरे परिवार के साथ शिवराज सिंह चौहान हमेशा जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उससे पहले अपने गांव के घर के ठीक पीछे स्थित मां नर्मदा नदी में जरूर आते हैं, और यहाँ पे इसी घाट पर शिवराज सिंह चौहान सूर्य नमस्कार करते हैं, मां नर्मदा का पूजन करते हैं, और मां रेवा यानी मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो है फिर आगे चलते हैं और वो उसके बाद आगे वोटिंग करते हैं। और ये तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये एक हर बार का नियम जो है शिवराज सिंह चौहान का, उनके पूरे परिवार का इसी तरीके से बना हुआ है। तो मतदान से पहले जो सारे धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हैं, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है मतदान का प्रयोग करते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने घर के ठीक सामने हनुमान जी का जो मंदिर है वहां पूजा की, उससे पहले उन्होंने कुलदेवी की पूजा की है, और अब यहां से मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के साथ ही तुरंत यहां से सीधे शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ जैत गांव में जो मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार विधानसभा के प्रत्याशी हैं इस बुधनी विधानसभा सीट से। और शिवराज सिंह चौहान जब से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 5 बार के सांसद और 5 बार के विधायक शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार इस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं, और हर बार इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ पहले करते हैं और उसके बाद ही वो मतदान के लिए निकलते हैं। ये देखिए, मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हें भेंट चढ़ा रहे हैं, और अब
जो है ये पूजन यहाँ पे संपन्न हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा का पूजन जो है वो कर लिया है और शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ, ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो जाने भी जाते हैं कि काफी धार्मिक शख्सियत है, उसी तरीके से अपनी परंपराओं का पालन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। उनके बेटे कार्तिकेय और कुणाल, साथ ही में धर्मपत्नी साधना सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सभी अब यहाँ से सीधे मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे और यहाँ पे जाकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका पूरा परिवार मतदान करेगा। ये वो जैत गांव है अंजना, मैं आपको बता दूं, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हुए थे और उसके बाद यहीं पर इसी नर्मदा में तैरने के बाद ही वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। पांव पांव वाले भैया अब लाडली बहनों के भाई बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। और अब यहाँ से देखिए पूजा संपन्न होने के बाद शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जो पत्रकार यहाँ तमाम पहुंचे हुए हैं भोपाल से, उनसे बात करके अब आगे रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री मतदान केंद्र के लिए। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि लगातार 6वीं बार शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ से अपना प्रत्याशी हैं और अब यहाँ से वो आगे जा रहे हैं मतदान के लिए। हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से बात करने की कि यहाँ पे किस तरीके से वो मानते हैं इस बार का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, कितना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है उनके लिए, क्योंकि इस विधानसभा सीट से जी बिल्कुल हम बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल पांव पांव वाले भैया अब जो है लाडली बहनों की, यही वो जगह है, मैं आपको बताऊं जना, इसी घाट से शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार आशीर्वाद लेते हुए मां नर्मदा का, और उसके बाद फिर यहाँ से वो रवाना होते हैं, आगे चलते हैं। और देखिए ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। पांव पांव वाले भैया अब लाडली बहनों के भाई बन गए मुख्यमंत्री जी। पांव पांव वाले भैया लाडली बहनों के भाई बन गए मंदिर पे भी भाऊ, ए भाऊ मंदिर देख सकते हैं शिवराज जी आपकी पूजा पाठ जी जी शिवराज जी। तो पांव पांव वाले भैया लाडली बहनों के भाई, अब क्या आशीर्वाद दिया बहनों ने? अभी आपका हूँ और लाडली बहनों का भाई हूँ। इस समय पूरे प्रदेश में मैं जहाँ जाता हूँ सबसे पहले बहनें दौड़ के आती हैं, गले लगती हैं, भावुक हो जाती हैं। ये मेरे लिए अद्भुत और अभूतपूर्व है। ये नियम है लगातार इसी तरीके से, जब सब मुख्यमंत्री यहाँ पे लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ते आए हैं, कोई भी चुनाव या महत्वपूर्ण कार्य होता है, इन नियमों का पूरा पालन करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और 1990 से लेके अब तक 6वीं बार के प्रत्याशी हैं। घाट भी बदला है और लोगों की जिंदगी भी बदली है। और सर ये जिंदगी बदलने का अभियान जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। अब तो मेरे मन में एक संकल्प है, लाडली बहना के बाद लखपति बहना अभियान, अपने सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, लखपति बने। तो 5वीं बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप क्या मान के चलते हैं? लेकिन आखिरकार में तो एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मामा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता का विनम्र सेवक। तो शिवराज सिंह चौहान हैं जो निकल गए हैं मतदान के लिए। आपको बताएं ये वो घाट है अंजना, जहां से मुख्यमंत्री, इसी घाट से इनका पूरा बचपन बीता, इसी गांव में, यहीं पे वो नदी में तैर करके अब एक तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार 6 बार से उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा की जो सियासी नाम है उसे भी पार लगाया है। लेकिन देखना अब यह है कि इस बार जब एमपी के मन में मोदी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, तो फिर आखिरकार मध्य प्रदेश के मामा, मध्य प्रदेश के भाई शिवराज सिंह चौहान इस बार किस नए रूप में, किस नए रोल में एक तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखेंगे, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अंतिम समय में पूरी ताकत झोंकी है शिवराज सिंह चौहान ने, 36 दिनों में 165 सभाएं, रैलियां, रोड शो किए हैं, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है किसी भी स्टार कैंपेनर के, कांग्रेस के हों या भाजपा के हों। तो देखना अब यह है कि शिवराज सिंह चौहान किस नए रोल में दिखने वाले हैं 3 दिसंबर के बाद। All right, so that's Shivraj Singh Chauhan, and if you heard closely, he said from Ladli Behna, which has been a popular scheme of the Madhya Pradesh government, to Lakhpati Behna next. So basically hinting, if I return from Ladli Behna to Lakhpati Behna will be our focus for the BJP government. So already slipping in
possible what the next scheme is, but offering prayers right now. So if that is what the BJP senior leaders are up to, offering prayers before and while the polling has started, what is the Congress big wing